جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرے ساتھ جو ہیں اگر یہاں پر زاہد کشکوری صاحب ہیں، پاکستان کے ون آف دا بیسٹ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، پالیٹکس کو بھی کور کرتے ہیں سما ٹی وی کے ساتھ۔ ان کو آگے انویسٹیگیشن سیل جو ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں۔ آج یہاں پہ بہت بڑی چینجز ہوئی ہیں۔ اس وقت رات کے تقریباً 2:30 کے بجنے کا ٹائم ہے اور آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں ابھی تک وہاں پر یہ پروسیڈنگ جو ہے قومی اسمبلی کی وہ چل رہی ہیں، تقریریں کی جا رہی ہیں۔ بڑا دن تھا آج پرائم منسٹر آف پاکستان جو عمران خان صاحب تقریباً 3.5 سال کے بعد آج ان کو نو کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے ان کو ہٹا دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہیں، تو اگلے 2-3 دنوں میں ان کا پروسیس جو ہے کمپلیٹ کر کے ووٹنگ ہوگی، پھر آگے سارا پروسیس کر کے شاید وہ جو ہیں وزیر اعظم بنے۔ اگین آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں بگ پولیٹیکل چینجز رہی ہیں۔ صبح سے میں اور زاہد جو ہیں یہ پارلیمنٹ کوریج کے لیے آئے تھے، تقریباً میرا خیال 7-8 بجے ہم اٹھے تھے اور پھر جہاں پارلیمنٹ پہنچے پورے پروسیس کے بعد تقریباً کچھ آگے 10-10:30 بجے کے ہم پارلیمنٹ میں پہنچے ہوئے ہیں، تو ابھی تک وہ ڈیوٹی جو ہے نا وہ چل رہی ہے۔ تو میسیو یہاں پہ چینجز ہوئی ہیں، پورا دن جو ہے ایک بڑا ہیکٹک رہا ہے، انسرٹینٹی کا رہا ہے۔ یہاں ریومرز تھیں، بہت ساری بڑی خبریں تھیں، بڑی سٹوریز تھیں۔ ہم نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر سیشن کو دیکھا، پھر ہم نے باہر دیکھا اور آپ نے بھی ساری چیزیں سنی ہوں۔ سو اٹ واز اے کہتے ہیں نا ڈے آف ایک اس میں کہ ہیپننگ، ایک بڑا دن تھا، بڑی چیزیں تھیں، کلیشز کے خطرے تھے، آپس میں انسٹیٹیوشنز کے خطرے تھے، آرمی کی طرف سے کوئی سگنل آ رہے تھے کہ شاید وہ موو آؤٹ کر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے حوالے سے بڑی ریومرز آ رہی تھیں۔ یہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ رات کو پہنچ گئے، انہوں نے آ کے سپریم کورٹ کے دروازے کھلائے۔ سو بہت کچھ پورا پاکستان جو ہے انہیں پینک لائک سچویشن تھا کہ کیا ہونے والا ہے، کوئی ایک اس طرح کا 12 اکتوبر تو نہیں ہونے والا ہے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، تو اگر زاہد اور میں نے اکٹھے سارا دن یہاں پہ رپورٹنگ کی ہے، ہم نے ہیپننگ دیکھی ہے، چیزیں دیکھی ہیں، جیسے میں نے کہا مینی ڈرامیٹک یہاں پہ ایونٹس ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے حامی ہیں، ڈیفینیٹلی دے اگین آپ کہہ سکتے ہیں دے مائٹ بی ڈیجیکٹڈ اینڈ ڈپریسڈ، تو لیکن ایک یہاں پہ نعرے بھی مارے جا رہے ہیں، جو نواز لیگ کے یا پی ڈی ایم کے ورکر ہیں وہ بھی نعرے مار رہے ہیں یہاں پہ۔ بہرحال میرا خیال ہے زاہد سے شروع کرتے ہیں کہ تھوڑی سی ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ آج کا سارا دن جو ہے وہ کیسے رہا اور زاہد نے وہاں پہ کس طرح کی چیزوں کو دیکھا ہے۔ میں اپنا بھی آپ کے ساتھ ایک اس انالیسس جو ہے شیئر کروں گا، یا زاہد کے ساتھ سوال و جواب میں۔ زاہد بڑی مہربانی آپ کی، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا کیا ریڈنگ ہے، کیا ہوا ہے آج؟ اگین وہی کچھ ہوا ہے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا؟ دیکھیے یہ ایک پاکستان کی نئی تاریخ آج رقم ہوئی ہے پارلیمنٹ میں۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نو کانفیڈنس ریزولوشن کے ذریعے باہر کر دیا گیا ہے، اور یہ ڈرامیٹک سینز، قیاس، غیر یقینی کی صورتحال پاکستان کی سیاست میں گزشتہ 37 دن سے چل رہی تھی، اور ہر آئے دن ایک نئی کہانی سامنے آتی تھی کہ کیا ہوگا۔ وزیر اعظم کہتے تھے کہ میں آخری بال تک کھیلوں گا، پی ڈی ایم جو ہے وہ ہر آئے دن سے اسٹرانگ ہو رہی تھی، لیکن ڈرامیٹک سچویشن سپریم کورٹ میں جب آپ کو پتہ ہے بیسیکلی جب 28 تاریخ کو یہ ریزولوشن ایکسیپٹ ہو گئی موشن، اور پھر ریزولوشن بن گئی، اس کے بعد 31 اپریل کو اور پھر 31 مارچ کو اور پھر 3 اپریل کو، اس کے بعد سچویشن پاکستان میں ایک نئی ریسنٹ ہسٹری میں ایک نئی چیزیں سامنے آئیں، جب نو کانفیڈنس موشن پہ ووٹ نہیں کرنے دیا گیا، اور سارے ہم لوگ ایز اے رپورٹر جو قانون کو سمجھتے ہیں، پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بالکل انکنسٹیٹیوشنل چیزیں کی گئی ہیں اور یہ اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ جب سپریم کورٹ میں کیس آیا، میراتھن پروسیڈنگ ہوئی، 18 گھنٹے کی پاکستان کے ٹاپ لائرز نے یہاں پر آرگومنٹ دیے، اور کسی اسٹیج پہ لگتا تھا کہ شاید یہ رولنگ تو اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی، ہو سکتا ہے ججز ڈیوائڈ ہوں اپنے ڈیسیجن دینے میں، یا پھر نیشنل انٹرسٹ کی بات آ جائے۔ پھر ادھر سے جب پرائم منسٹر اور جو نو کانفیڈنس موشن جب ریجیکٹ ہوئی تھی، 13 منٹ کا دورانیہ تھا جو پرائم منسٹر نے اسمبلیز کو ڈیزالو کے لیے ایڈوائس بھیج دیا وہاں پر نیشنل اسمبلی کو، صدر کو، اور ایک عجیب سی سچویشن تھی۔ پھر سپریم کورٹ نے سوموٹو نوٹس لیا ہے، یہ بھی ایک نئی تاریخ ہے، اور پھر سپریم کورٹ کا 5-0 سے ججمنٹ آنا ایک پوری فورس کے ساتھ۔ کسی اسٹیج پہ لگتا تھا، جس طرح آج آپ نے دیکھا ڈاکٹر شیریں مزاری نے کہا ہے کہ یہ ایک جوڈیشل سخت ویسے تقریریں کی گئی ہیں یہاں پہ، اسپیشلی بات اٹھائی گئی ہے، اور شاہ محمود قریشی نے، ڈاکٹر شیریں مزاری نے، شاہ محمود قریشی نے یہ بھی بتایا کہ پی سی او ججز کی بات کی، ججز کے کچھ اشارے کنائیوں میں ڈائریکٹ نہیں، اس سے لگتا تھا کہ ان کو بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے کیونکہ بہت بڑی رولنگ آئی ہے سپریم کورٹ کی۔ لیکن ایک چیز آپ دیکھیں یہاں پر
आज जब हम खड़े हैं 19 घंटे की प्रोसीडिंग हमने कवर की है यहाँ पार्लियामेंट में। 19 घंटे हो गए हैं जब हम यहाँ पर आए थे और हर घंटे नई ब्रेकिंग स्टोरी आती थी। नर्व्स ब्रेकिंग है, मत से नर्व्स ब्रेकिंग खबरें आती रही हैं। मतलब ब्रेकिंग स्टोरी तो अपनी जगह, नर्व्स ब्रेकिंग जैसे होते हैं ना, असाब शिकन जो है उस तरह की डेवलपमेंट सामने होती देखी। कभी उम्मीद है, कभी ना उम्मीद है, कोई क्लैशेस हैं, वो सारी देखी हैं। बिल्कुल। और जब देखा ये लॉन्गेस्ट टाइम है किसी भी वनडे प्रोसीडिंग का यहाँ पार्लियामेंट में भी रीसेंट हिस्ट्री में, जो अब से 10:30 से लेकर अभी तक 20 साल से तो मैं कवर कर रहा हूँ, 2002 से इतनी टाइम में कभी ऐसा नहीं हुआ। अभी तक प्रोसीडिंग जारी है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात ये कि जो आखिरी 4 घंटे थे, लगता था कि इमरान खान को एक ब्लाइंड एले में, बंद गली में हर तरफ से बंद कर दिया गया था। उसके पास चॉइसेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। उनको रिज़ाइन करना था, यहाँ वोटिंग करवानी थी और एक घड़ी चल रही थी मिनट बाई मिनट की, 11:59 को इस पे वोटिंग करवानी है। सुप्रीम कोर्ट ने बाइंडिंग कर रखा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फ्लोर ऑफ द हाउस यहाँ पर रिजाइनमेंट देखी है हमने PTI के मेंबर्स की, और होनी भी चाहिए। उन्होंने ये बताया कि मैं यहाँ कहना चाहूँगा ये इम्पोर्टेंट है, PTI के मेंबर ये समझते थे कि पार्लियामेंट को बाउंड कर दिया गया है, पार्लियामेंट की सुपरमेसी को अंडरमाइन किया गया है इस जजमेंट के थ्रू। आपने देखा स्पीकर ने भी और चेयर ने भी यही कहा कि 69 जो है वो मेरा राइट बनता है, और हमें लगा कि शायद आज इसको फिर मोशन को स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए, कोई ऐसा स्टेप ले लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा सा आते हैं फर्दर, इस पर मैं आपसे बात करता हूँ। बहुत सारी तनकीद हो रही है, 2-3 चीज़ें इंटरप्रिटेशन आज हमने देखा हाउस में, स्टेज में लगा था कि पूरे डिफेंस के मूड में थे। कोई इमरान खान साहब की पार्टी के जो लोग जो है ना, कहीं से नहीं लग रहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो फैसले के बाद उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना है, या उन्होंने आके प्रोसीडिंग आके वैसे ही चलानी है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो वो पहले इससे जब आप अमजद खान नियाज़ी साहब बैठे हैं, उन्होंने भी इस तरह का डिफेंस का मूव किया है। उससे पहले स्पीकर साहब हैं, उनका भी लग रहा था, उन्होंने फ्लोर किया जैसे शाहिद कुरैशी साहब को। और बाद में भी हमने देखा कि जिस तरह की चीज़ें होती गई हैं, शोर शराबे तकरीरें, लेकिन कहीं से लग नहीं रहा था कि हुकूमत किसी दबाव में है, हुकूमत आके सुप्रीम कोर्ट के नीचे झुकना चाहती है। और जो बात वो इमरान खान साहब कह रहे थे मैं आखिरी बाल तक लड़ूंगा, मेरे पास मज़ीद ट्रम्प के कार्ड हैं, तो वो तो हमें ये लगा आखिर पे ट्रम्प कार्ड जो हैं वो उसमें उन्होंने स्पीकर से इस्तीफ़ा दिलवाया, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन्होंने डिप्टी स्पीकर से दिलवाया, फिर एजाज सादिक साहब को बिठाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसके पहले हम हाउस पे हैं, बहुत सारे लोग ब्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के गिर्द गिर्द उनके अपनी पार्टी के कोई 2-4 वजीरों से मेरी बात हुई है, कुछ लोगों से हुई है, वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के जो एडवाइज़र थे, 2-4 लीगल एक्सपर्ट थे, उनके करीबी कोई वजीर भी हैं, दीगर भी हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को मिसगाइड किया कि अल्टीमेटली रात के 12-1-2 बजे वही काम हुआ है जो सुबह 8-10 बजे हो सकता था, 10-11 बजे। तो क्या फिर इनकी क्या स्ट्रैटेजी थी? अल्टीमेटली तुम्हें करना पड़ गया है जो उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। वट एवर देयर एतराज़ात जो बाद में शीरी मज़ारी ने भी कहे, असद उमर ने भी कहे, शाहिद कुरैशी ने भी कहे, बाकी लोगों ने भी कहे, अगर आपने 24 घंटे 12 घंटे बाद यही कुछ करना था तो मॉर्निंग में भी ये सारी चीज़ें स्मूथली हो सकती थी। देखिए, जितना मैंने आपको बताया ना, 1 महीने से ये सिटी चल रही थी और इमरान खान का एज ए पॉलिटिशियन और एज ए प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल इंगेजमेंट ना करना, ये बिल्कुल जो सिचुएशन आज हुई है पाकिस्तान में, नई तारीख रकम हुई है, इससे आराम से बचा जा सकता था। अगर एक बेहतर आप सियासतदान हैं, एक प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने सिर्फ कुल मिला के 12-13 मेंबर नेशनल असम्बली के लोगों को इंगेज करना है, वो आराम से कर सकते थे। लेकिन ये 2012 की सूरत हाल पैदा की गई इमरान खान 12 या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुई थी। अच्छा, उसमें हुई, मैं 12 अक्टूबर की बात कर रहे थे 99। नो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसी तरह से वहाँ पर जब यूसुफ गिलानी को वो हुआ था सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उस वक्त के जो लीगल एडवाइज़र थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, आज ये कि महज इत्तेफाक है वो इमरान खान के लीगल एडवाइज़र हैं। नहीं, आप ये नेम देम बट यू नो वेल। मुझे ये समझ आ रही है कि आप जो बात कह रहे हैं, वैसे मेरे जहन में ये बात नहीं आई। उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के वही वो एडवाइज़र थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, जरदारी साहब के, जो अभी इमरान खान साहब के थे। उस वक्त भी डिज़ास्टर हुई थी उसके लिए, यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए वो नाहल हुए थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के लिए भी साहब बहुत बड़ा सेटबैक है उनके हामी के लिए। वही दोनों मतलब एडवाइज़र का वही है डिफरेंस रहा है कि एडवाइस सही नहीं मिली उनकी, उन्होंने लड़ा दिया है उनको इदारों के साथ, उधर एक तरफ फ़ौज के साथ प्रॉब्लम आ रहे हैं, फिर
सुप्रीम कोर्ट के साथ आ रहे हैं, पार्लियामेंट के साथ तो आ रहे हैं, या एक तीसरा व्यू भी है कि इमरान खान साहब को वही एडवाइस दी है उनके एडवाइज़र ने, जो उनके एडवाइज़र कहते हैं भी हम क्या करें, जो खान साहब एडवाइस सुनना चाहते थे, जो एडवाइस उनको अच्छी लग रही थी वही एडवाइस दी गई है। हमको डिफरेंस आके जिन लोगों ने डिफरेंट एडवाइस दी है इमरान खान साहब को कि हमें इस मामले को कैसे हैंडल करना है स्मूथली डेमोक्रेटिकली, उनकी बात तो नहीं सुनी गई, उनको साइड पर कर दिया गया, तो फिर इन्हीं की सुनी जानी थी क्योंकि खान साहब सुनना वही चाहते थे। नहीं देखिए, ये इमरान खान का हमेशा प्रॉब्लम रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे आज एज ए रिपोर्टर लगता है कि इमरान खान की जो स्ट्रगल थी, फिर उसकी पार्टी पावर में आई, एक अच्छा खासा 3 साल 8 महीने का उसको टाइम मिला है, ये बहुत बड़ा टाइम होता है किसी भी पार्टी के, तो ये एक अपनी चीज़ें वो बेहतर कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इमरान खान ने 19 अगस्त 2018 को एक एजेंडा दिया था 61 पॉइंट का, अगर आप आज देखें 3 साल 8 महीने के बाद उस एजेंडे पे सिर्फ रऊफ 16% एग्जीक्यूट हुआ है, 100% वो एजेंडा 16% just और 61% जो है उस पर काम पेपर पे मौजूद है, तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन लेकिन है। खान साहब कह सकते हैं कि मेरे पास अभी साल सवा साल था, मैंने अगर 16% कर लिया था तो बाकी मुझे टाइम मिलता पूरा तो मैं उस पर कर सकता था। अच्छा, मैं दूसरा आपसे सवाल पूछता हूँ, मैं अपोजिशन ने जिस तरीके की जल्दी की है, मतलब मेरा ज़ाती तौर पर व्यू है, बड़ा नॉन व्यू है, आई मे हैव बीन वेरी क्रिटिकल ऑफ इमरान खान साहब गवर्नमेंट, हिज पॉलिसीज़, और हम उसका इजहार भी करते हैं, रिपोर्टर का काम होता है, खबरें दे, स्टोरीज है, हुकूमतें हमें नहीं पसंद करती, फेयर इनफ, लेकिन वो खान साहब जो हैं, मेरा ये ख्याल है अगर वो 5 साल पूरे करते उन्हें बड़ा एक उनको बड़ी खूबसूरत एग्जिट मिली है, जो जितनी फेलियर थी 3.5 साल की, महंगाई की, डॉलर की, लोगों की तंग, हमें सारा पता है, वो शायद उनके लिए नए इलेक्शन में जाना 1 साल बाद मुश्किल हो जाता इस महंगाई के साथ, इस अप्रोच के साथ। अब उन्हें जो एग्जिट मिली है, उनकी पार्टी ने रिवाइव किया है, उनके फॉलोअर्स ने रिवाइव किया है, यूथ ने रिवाइव किया है, तो इमरान खान साहब स्टैंड एट ए मच बेटर हाई पेडेस्टल। सो अपोजिशन ने वट एवर द रीज़न, कंस्पिरेसी थी, अमेरिकन थे, आप थे, मैं थे, जो भी था, तो इमरान खान साहब मस्ट बी वेरी हैप्पी मैन कि चलो ठीक है, साल की ख़त्म हो गई मेरी ये प्राइम मिनिस्टरशिप, फेयर इनफ, मैं दोबारा अगर इलेक्शन होते हैं साल बाद 6 महीने बाद, इसी नैरेटिव के साथ मैं वापस आ सकता हूँ, मेजॉरिटी ले सकता हूँ। सो इन अदर वर्ड्स कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी, अदरवाइज जिस तरह की गवर्नेंस हो रही थी, जिस तरह की स्टोरीज आ रही थी, स्कैंडल आ रहे थे, बुजदार साहब को हमने देखा, पंजाब में 3 घरानों की बातें हो रही थी, मनीकत में वहाँ पे, उसके बाद गुजरावाला के गुजर फैमिली ने, फिर तोसा से हमारे बुजदार साहब ने, उन 3-4 फैमिलीज ने बेनिफिट किया है। सो खान माइट भी वेरी फिट, अंदर से खुश होंगे कि जो आज एक बड़ा लीडर बन गया हूँ, भुट्टो बन गया हूँ, डिफेंस का मैं कुछ अलामत बन गया हूँ, मैंने सबको डिफीट कर दिया, और मैं वो कहते हैं 1 मैन आर्मी, अकेला आदमी अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द पार्टीज, 11 पार्टी। तो इमरान खान साहब ने क्या लूज़ किया है? नहीं देखिए, इमरान खान ने अभी जो आने वाला 1.5 साल है ना, एज ए रिपोर्टर मैं आपको बताऊं, आपको इस गवर्नमेंट की 3.5 साल की करप्शन की कोई स्टोरीज नज़र नहीं आई। यार रुक जाए, ये बड़ी स्टोरीज आपको मिलेंगी, नॉट ओनली द गवर्नमेंट, जो अभी लोग नए कल से आएंगे गवर्नमेंट में, उनकी बड़ी स्टोरियाँ ये होंगी कि वो बड़े बड़े ऑलरेडी करप्शन के केसेस। आपने ये कहा, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, आपने कहा वो बड़े स्टोरीज नहीं, हमारे लिए ये बड़ी यार 11 स्कैंडल गए हैं, आपने भी कुछ रिपोर्ट किए हैं, कुछ हमारे और दोस्तों ने किए हैं, कुछ 2-4 को आमिर मतीन ने, कुछ हम सब ने रिपोर्ट किए हैं। बीट स्कैंडल आया यहाँ पे सुनते हैं, उसके बाद शुगर स्कैंडल आया, IPP स्कैंडल आया, अद्वियात का स्कैंडल आया, फिर यहाँ पे सीमेंट के स्कैंडल गए, फिर यारों दोस्तों में ATM के स्कैंडल है, फिर यहाँ पे रिंग रोड वाला स्कैंडल। मैं आपको वैसे उसमें गिनवा रहा हूँ, और बहुत सारे इंक्वायरीज हुई, FIA की हुई, दीगर इसकी, जिसमें इनके अपने मिनिस्टर जो है वो इन्वॉल्व थे, मुलव्वस थे, बहुत सारे इनके वजीर जो हैं उनको ठेके दिए गए, जैसे उसको रज़ाक दाऊद को मेमन डैम वाला ठेका मिला 300 बिलियन रुपीस प्लस का, वहाँ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के केसेस कोई एक्शन हुए हैं, वो हुकूमत ने कैसे करने थे? हम इस हुकूमत ने तो नहीं करने थे एक्शन, जो खुद बैठी। तो मैं कह रहा हूँ कि अब वो फ्रेश होके नए उनके एविडेंस सामने आएंगे, फिर दोबारा देखते हैं कि उधर से भी करप्शन फेसेस कर रहे होंगे गवर्नमेंट के लोग भी, फिर अब तो ये अपोजिशन में मोस्ट लाइकली हो सकता है कि पता नहीं अपोजिशन में ये बैठते हैं, ये रिज़ाइन कर देते हैं, ये तो डिफरेंट स्टोरी होगी, लेकिन इमरान खान के पास 1 साल या 8 महीने ज़रूर हैं मोबिलाइज करने के लिए आवाम को, और वैसे भी इमरान खान एक क्राउड पुलर हैं, उसकी सपोर्ट मौजूद है, और ये एक अच्छी कमबैक दे सकते हैं, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होगा, एक एक्सपीरियंस भी हो चुका है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, अनफॉर्चुनेटली जो रियासत के लिए हम रियासत को ओवरऑल देखें, पाकिस्तान की इकानमी को देखें, या पाकिस्तान के ओवरऑल इंस्टीट्यूशन का हाल देखें, वो
बदतरीन है इस वक्त, और ये एक लिटमस टेस्ट होगा नई गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि उसको बहुत सारे कवानीन बनाने हैं, रिफॉर्मेशन देनी है, टाइम बहुत थोड़ा है। अच्छा, मैं Institution पे सवाल अब थोड़ा आखिरी उस पे आ रहे हैं जो सवालात हैं कि शहबाज शरीफ साहब पे साफ ज़ाहिर टेंटेड हैं, नैब के मुलजिम हैं, ज़मानत पे हैं, हमजा शहबाज शरीफ साहब भी हैं, शरीफ फैमिली पे केसेस हैं, नवाज शरीफ साहब पे हैं, मरियम नवाज साहबा से, बल्कि मेरा ख्याल 70% जो आपकी ये PML नवाज की लीडरशिप है, बल्कि 80% जिनमें से बहुत सारे मिनिस्टर बने हैं, उनके केसेस हैं, मुकदमे ज़मानतों पे हैं। तो ये भी पाकिस्तान का मेरा ख्याल यूनिक एक्सपीरियंस होगा। प्राइम मिनिस्टर पे केसेस हैं, उनके बेटे पे केसेस हैं, उनके भाई भतीजी पार्टी लीडर जो हैं। सो इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई कर सकेंगे? और इमरान खान साहब जो है इस बात को यकीनन वो हाईलाइट करेंगे अगर रिजाइन नहीं करते। विजय पर्सनली थिंक, मैंने ट्वीट्स भी किए हैं कि इमरान खान साहब को रिजाइन नहीं करना चाहिए, पार्लियामेंट में बैठ के टफ टाइम दें इनको। मतलब आप पार्लियामेंट को अकेला छोड़कर जाएंगे तो उनके रास्ता खुला छोड़ेंगे। माई व्यू हैज़ ऑलवेज बीन कि इमरान खान साहब को उसको डिसेंट तरीके से यहाँ पर पोजीशन करनी चाहिए। सो ये कितना आसान होगा इनके लिए, शहबाज शरीफ साहब और इनकी पार्टी के लिए, इतने करप्शन केसेस के इल्ज़ामात के बाद वो आके क्लीन और अच्छी आके गवर्नेंस दें और मज़ीद करप्शन ना करें। बहुत मुश्किल होगा। इमरान खान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जिससे आपने डिस्कस की बात की, अपॉर्चुनिटी ज़रूर है। डू यू नॉट थिंक कि वो इसको अवेल कर पाएंगे? ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यूनाइट रखना इमरान खान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। ये पॉसिबिलिटी आप ये कह रहे हैं पार्टी टूट जाएगी? पार्टी नहीं टूटेगी। उसके बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट जो इलेक्टेबल हैं वो PTI को छोड़ जाएंगे, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन हैं ये ऑलरेडी 20 मेंबर नेशनल असम्बली के खिलाफ जो कि इलेक्टेबल हैं, उनको किसी पार्टी का टिकट नहीं चाहिए होता है, उनके खिलाफ उन्होंने रेफरेंस भेज दिया हुआ है स्पीकर को, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आ जाएगा। ये एक बड़ा चैलेंज है। वोट नहीं डाला, उन्होंने वोट नहीं डाला, उस पर कैसे एक्शन होगा वैसे? क्योंकि जब तक आप वोट नहीं डालेंगे, कोई क्राइम कमिट नहीं करेंगे, तो आपको कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते? क्राइम तो कमिट नहीं हुआ। वो डिफेक्टर हुए हैं, और जो पार्टी डिफेक्टर मीन्स कि उन्होंने अपनी आके ओपिनियन दी है, वोट तो नहीं डाला पार्लियामेंट, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। आगे जाके आई एम सॉरी, जो कल अगर पॉसिबिलिटी है वोट हो जाए न्यू लीडर ऑफ द हाउस के लिए, और चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बन जाते हैं, अगर वो वोट करते हैं, वैसे वोट की ज़रूरत नहीं है, जो नंबर इस वक्त सामने आए हैं 174, लेकिन फिर भी आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है। ये तो आपने लिए है ना, नो कॉन्फिडेंस था ना अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, द न्यू प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग, जो मुझे समझ है ले मैन वाली। तो नए वज़ीर आज़म को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है, आपको 172 प्लस आपको शो करने पड़ेंगे, मेरा ख्याल है वही भी नहीं, एब्सोल्युटली करना पड़ेगा। 172 पे एक प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, लेकिन ओवरऑल जितने ज़्यादा हूँ तो कोई वो उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। ये आपने सुना, यहाँ पे रात का समय है, जो उनके नवाज लीग के हामी हैं सारे, उनके यहाँ पार्लियामेंट में आप पीछे देख रहे हो नारे गूंज रहे हैं यहाँ पे वो बहुत सारे, और कहीं पे मैं PTI के उस तरह के वर्कर्स लोग वो नज़र नहीं आ रहे जो इमरान खान साहब ने शायद अपील की थी कि लोग निकलेंगे, बह रहेंगे। तो बाकी आपको अपडेट करते रहेंगे उसमें। अगेन आने वाले दिनों में 2-3 दिन मज़ीद सिचुएशन है वो क्लियर होगी। इट वाज अगेन वो कहते हैं डे ऑफ हैपनिंग, इवेंट्स, र्यूमर्स, थ्रेट्स, पैनिक। और हमारे लिए भी बड़ा था, सुबह 7-8 बजे के उठे हैं इस वक्त रात के। ये अगर डिस्कोर्स अब क्या टाइम हुआ इस वक्त? रात के 2:30 बजने वाले हैं, तो अभी तक हम वी आर ऑन ड्यूटी। बहरहाल फिर आपके साथ उस मज़ीद खबरों और उस एनालिसिस के साथ हम फिर हाजिर हैं। थैंक यू।